रिकॉर्डिंग होना चाहिए, रिकॉर्डिंग हो रहा है? ठीक है, चल. So far we saw that what kind of woman Matilda is, what her desires are there in her life, what she wants of her life, and in what circumstances, in what conditions she is living her life, which is pretty adverse to what she requires, she wishes for. And she is supposed to attend a party at the ministry, at the residence of a minister. The husband, Mr. Loisel, is very happy with the invitation he has got, but Matilda is not at all happy. She does not want to be the part of the party. Why? Because she thinks that she does not have a pretty dress, she does not have a good dress to fit to that particular party where all the rich women would be coming. Now how the problem gets solved? The problem gets solved by this, that the husband gives Matilda 400 francs to buy a new fantastic pretty looking clothes, and she is very happy with this idea of 400 francs, and she finally she purchases a pretty dress. But now a fresh problem arrives. Now how the fresh problem is solved, and what are the consequences of solving those problems, and what kind of party environment it was, what happens after the party, we are going to learn all this in the further part. So it says that the day of the ball approached, and Madame Loisel seemed sad, disturbed, anxious. Nevertheless, her dress was nearly ready. Her husband said to her one evening, "What is the matter with you? You have acted strangely for 2 or 3 days." Now, Matilda has finally got her, fresh dress, pretty new dress, but she does not look happy at all. Even after getting a new dress, she does not look happy at all, and her husband notices her unhappy state of mind, and the husband asks Matilda, "What is the reason behind your being unhappy? I can figure out that you are not happy, and I can see that during the last 3-4 days you do not behave, you do not act happily. What is the matter with you? After all, I have already given you 400 francs, you got the new dress, you must be very happy. Now what exactly is the reason that you do not seem very happy? Now what is the problem?" And the problem is this, and she responded, "I am vexed not to have a jewel, nothing to adorn myself." Now the first problem is of jewelry. Matilda got a new dress, but she does not have a jewelry to fit her new clothing. So she says कि मैं बहुत परेशान हूँ. I'm vexed. Vexed means परेशान. मैं बहुत परेशान हूँ, तंग हूँ, because I do not have a jewel, I do not have a necklace, I do not have a garment to put on the new clothes. I shall have such a poverty-stricken look. कहती है कि अगर मैं इस कपड़े में बगैर जूअल के मिनिस्टर के पार्टी में जाती हूँ, so I shall not be impressive, I shall not act impressively, I shall not look impressive. मैं खूबसूरत नहीं लगूंगी, मैं अट्रैक्टिव नहीं लगूंगी, मैं इम्प्रेस नहीं कर पाऊंगी वहाँ पे लोगों को. सो मेरी फर्स्ट प्रॉब्लम है जूअल्स, मेरे पास कोई गहने नहीं है पहनने को. I would not prefer to go to this party. Once again she rejects going to the party. Once again she says that she is not interested going to the party. अब इस पर फिर हस्बैंड एक सोल्यूशन लेकर के आते हैं. पहले प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन हस्बैंड ने दिया, सेकंड प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन हस्बैंड ने दिया. इससे ये पता चलता है कि हस्बैंड अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा प्यार करता है. एक मिडिल क्लास फैमिली जीते हुए मिडिल क्लास मैन होने के बावजूद वो अपनी वाइफ का पूरा ख्याल रखना चाहता है. फिर एक नया सोल्यूशन लेके हस्बैंड आता है और कहता है कि रिप्लाई कि यू कैन वेयर सम नेचुरल फ्लावर्स इन दिस सीजन, दे लुक वेरी चिक. चिक मीन्स ब्यूटीफुल, प्रिटी. हस्बैंड कहता है कि इस सीज़न में नए नए फ्लावर्स उगे, तो तुम फ्लावर्स का गार्डन बना लो, एक माला टाइप का कुछ बना लो, गारमेंट बना लो, और उसी को तुम पहन लो, और उसमें तुम बहुत चिक लगोगी, बहुत प्रिटी लगोगी. शी वॉज नॉट कन्विंस्ड. ये बात सुन करके मटिल्डा बिल्कुल कन्विंस्ड नहीं होती. नो, शी रिप्लाइड, there is nothing more humiliating than to have a shabby air in the midst of rich women. कहती है कि अमीर औरतों के बीच में मैं
फूलों की माला पहन करके जाऊंगी, फूलों की एक ऑर्नामेंट पहन के जाऊंगी, इट विल नॉट बी इम्प्रेसिव, आई विल नॉट लुक इम्प्रेसिव, मेरा वहाँ पे इम्प्रेशन नहीं बनेगा, रिच वुमन के बीच में मेरा इम्प्रेशन क्रिएट नहीं हो पाएगा, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ पार्टी में जाने की। फिर हस्बैंड सोल्यूशन, एक नया सोल्यूशन लेके आता है। देन द हस्बैंड क्राइड आउट, हाउ स्टूपिड वी आर, go and find your friend Madam Forestier and ask her to lend you her jewels. अब एक नया सोल्यूशन लेके हस्बैंड आता है, कहता है कि जाओ अपने जो तुम्हारी फ्रेंड है, निबर में जो तुम्हारी फ्रेंड रहती है, इनका नाम मैम फॉरेस्टियर है, उनके पास बहुत सारे गहने हैं, go and ask for some jewels and I'm pretty sure that she will not make you feel disappointed. तुम्हें वो निराश नहीं करेगी, तो तुम्हें जरूर कोई ना कोई गहना देगी। ओके, नाउ ये सुन करके मटिल्डा को थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है कि ओह आई गॉट अनदर जुगाड़, आई मीन आई गॉट अनदर वे ऑफ फुलफिलिंग माई रिक्वायरमेंट, अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के नया तरीका मुझे मिल गया। सो शी अटर्ड ए क्राई ऑफ जॉय, इट्स ट्रू शी सेड, आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, कहते मैं तो सोचा ही नहीं था, बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, मैं जाती हूँ उसके पास। द नेक्स्ट डे she took herself to her friend's house and related her story of distress. What is the story of distress? Question पूछ देगा, underline करो। What is the story of distress? Distress means trouble, परेशानी। अगले दिन माटिल्डा मैम फॉरेस्टियर के पास जाती है और अपनी जो दुख है, अपनी जो डिस्ट्रेस है, अपनी जो परेशानी है, उसकी स्टोरी बताती है। मैम फॉरेस्टियर went to her closet, took out a large jewel case, brought it, opened it and said, choose my dear. मैम फॉरेस्टियर एक जनरस नेचर की वुमन होती है, हेल्पफुल नेचर की वुमन होती है, दूसरों की मदद करने वाली होती है। जब उन्हें पता चला कि माटिल्डा की ये प्रॉब्लम है, वो क्विकली जाती है अपने क्लोजेट में, यानी कि अपने वार्डरोब में, अलमीरा को खोल के जितने गहने हैं सारे गहने ले आकर के शी पुट ऑल द ज्वेल्स बिफोर माटिल्डा के सामने वो रख देती है और कहती है कि चूज माय डियर, इसमें से जो भी तुम्हें पसंद है चूज करो। शी सॉ एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट्स, मैंने कुछ न कुछ ब्रेसलेट्स देखे तो हाथ में पहने जाते हैं। देन ए कॉलर ऑफ पर्ल्स, मोतियों के बने हुए माला, कॉलर ऑफ पर्ल्स मीन्स मोतियों की माला। देन ए वेनेशियन क्रॉस ऑफ गोल्ड एंड ज्वेल्स ऑफ एडमायरेबल वर्कमैनशिप। वेनेशियन एक स्पेशल काइंड ऑफ वेनिस में, वेनिस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वेनिस एक शहर है, वेनिस में दुनिया की सबसे बेहतरीन ज्वेल की कारीगरी होती है, सबसे बेहतरीन। कुछ वेनेशियन क्रॉस ऑफ गोल्ड और ज्वेल्स भी थे उनके पास, यानी कि महंगे महंगे ज्वेल्स भी मैम फॉरेस्टियर के पास थे। She tried the jewels before the glass, hesitated, but could not decide to take them nor leave them. Then she asked, "Have you nothing more?" सारे ज्वेल्स को माटिल्डा वन बाय वन ट्राई कर दिए, मिरर के सामने खड़े होकर के पहनती है और वो किसी भी ज्वेल से वो कन्विंस नहीं हो पाती। फिर पूछते कि तुम्हारे पास और कोई दूसरा नहीं, ये सब मुझ पर जच नहीं रहा। वाई? यस, लुक फॉर योर सेल्फ, आई डोंट नो व्हाट विल प्लीज यू। कहती है हाँ है, मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या अच्छा लगेगा, लेकिन और भी है मेरे पास। सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सैटिन बॉक्स अ सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड्स। अचानक से उसका नज़र पड़ता है ब्लैक कलर के गारमेंट पे जो डायमंड का बना होता है, ठीक इसी शेप का बना होता है, उस पे नज़र इसका पड़ता है माटिल्डा का। She placed it about her throat against her dress and was ecstatic. इस डायमंड को उसने, नेकलेस को उसने अपने गले पे पहन के चेक किया और वो बहुत ecstatic थे। Ecstatic means extremely happy. Okay. Then she asked in a hesitating voice, full of anxiety, could you lend me this, only this? थोड़ा सा हेजिटेट करते हुए माटिल्डा सोचती है कि बहुत महंगा ज्वेल, बहुत महंगा नेकलेस है, शायद मैम फॉरेस्टियर देना चाहेंगे कि नहीं देना चाहेंगे। तो हेजिटेट करते हुए माटिल्डा थोड़ा सा संकोच करते हुए पूछती है कि वुड यू लाइक टू गिव मी दिस, क्या आप मुझे ये दे सकती हैं, ये मुझको वो सूट करेगा। वाई? यस सर्टनली। तो जवाब आता है अफर्मेटिव में, यानी कि मैम फॉरेस्टियर कहती है कि ठीक है, ये तुम ले जा सकती हो। नाउ शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, embraced her with passion, then went away with regret. नेकलेस लेने के बाद गले लगाती है काफ़ी स्नेह के साथ, काफ़ी प्यार के साथ माटिल्डा मैम फॉरेस्टियर को, और फिर नेकलेस लेके अपने घर चले जाते। The day of the ball arrived. What is the day of the ball? The day of the party.
at minister's residence. मिनिस्टर के घर पे जो पार्टी होनी थी उसका दिन आज आ चुका है. मैम लॉसल, who is मैम लॉसल? Matilda. Mr. Lawson, his husband. So मैम लॉसल was a great success. Underline करो. Question बनेगा. How can you say that मैम लॉसल was a great success? वो successful कैसे हो गई? She became successful because all her requirements were fulfilled by one of the requirements was fulfilled by her husband, and the second one was fulfilled by one of her friends, Ma'am Forrester. So she considered herself to be a successful woman. Succeed कर गई थी कि पार्टी में पहन के जाने के लिए जितनी चीज़ें चाहिए उतनी चीज़ें अरेंज नहीं हो पा रही थी. वो स्ट्रगल कर रही थी उन चीज़ों को अरेंज करने के लिए, लेकिन फाइनली वो सारी चीज़ें अरेंज हो जाती है तो वो सक्सेसफुल फील करती है. She was the prettiest of all, elegant, gracious, smiling and full of joy. पार्टी में ये सबसे खूबसूरत औरत देखने मिली. सबों की निगाहें वहीं पर. Elegant means attractive, gracious, good looking, smiling and full of joy. All the men noticed her, asked her name and wanted to be presented. जितने भी पार्टी में लोग थे सभी लोगों ने माटिल्डा के प्रेजेंस को नोटिस किया. सभी लोग माटिल्डा को ही देख रहे थे और उसके साथ बात करना चाहते थे. सभी लोगों ने उनसे माटिल्डा से उसका नाम भी पूछा. अब माटिल्डा इज ऑन क्लाउड 9. ऑन क्लाउड 9 मीन्स सातवें आसमान पे. शी इज फीलिंग एक्सट्रीमली एक्सटैटिक, एक्सट्रीमली हैप्पी. शी अपीयर्स टू बी द रिचेस्ट वुमन ऑफ द वर्ल्ड. ऐसा लग रहा है उसे कि दुनिया की सबसे अमीर औरत है. बहुत महंगे उसने गहने पहने हैं, महंगे ड्रेस पहने हैं, महंगी पार्टी में आई है, हाई सोसाइटी में वो आई है. अपने आप को वो बहुत खुश महसूस कर रही थी. इस खुशी में वो क्या करती है? शी डांस विद एंथुसियाज्म. काफ़ी जोश के साथ, काफ़ी हौसले के साथ वो पार्टी में डांस कर रही थी. इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर. इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर मीन्स प्लेजर मतलब खुशी. इंटॉक्सिकेटेड, आप इंटॉक्सिकेटेड तब हो जाते हैं जब आप नशे में हो, किसी चीज़ के नशे में. किसी भी चीज़ का नशा इंटॉक्सिकेटेड होता है. सक्सेस का नशा, पैसा कमाने का नशा, पैसों का नशा, शराब का नशा, किसी भी चीज़ का, घमंड, पोस्ट का नशा. तो किस चीज़ के नशे में वो खोई हुई थी? खुशी के नशे में खोई हुई थी वो. थिंकिंग ऑफ नथिंग. उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कुछ भी याद नहीं आ रहा, कुछ भी वो नहीं सोच रही थी. बट ऑल दिस एडमायरेशन, दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट. उसे कुछ भी उस वक्त एहसास नहीं हो रहा था बगैर खुशी के, बगैर प्रेजेंट. तो सिर्फ खुशी महसूस हो रही थी और उसके दिल को काफ़ी स्वीट फील हो रहा था. बहुत दिल को तसल्ली महसूस हो रहा था कि एक दिन के लिए ही सही, बट शी इज़ लिविंग व्हाट काइंड ऑफ लाइफ, विच लाइफ. एक दिन के लिए ही सही, एक शाम के लिए ही सही, बट आफ्टर ऑल शी इज स्पेंडिंग दैट वंडरफुल इवनिंग एट द मिनिस्ट्री, एट द रेजिडेंस ऑफ द मिनिस्टर in a rich fashion, in a rich manner, in a wealthy manner. से बहुत खुशी हो रही थी. Now the party is over. Party is over. Now she has to go to her house. अपने घर जाना होता है. घर जाने के दौरान क्या होता है? She went home towards 4 o'clock in the morning. देर रात तक पार्टी चली. 4 बजे सुबह में पार्टी ओवर और ये लोग घर की तरफ निकल गए. Her husband had been half asleep in one of the little saloons since midnight with 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. सलून में होता है छोटा सा कमरा जिसमें लोग स्टे करते हैं, थोड़ा देर इंतजार करते हैं, वेटिंग रूम कैसे. तो पार्टी जहाँ पे हो रही थी मिनिस्टर के रेजिडेंस पे, वहाँ पे एक कमरे में इसका हस्बैंड और भी 3 लोगों के साथ सोया हुआ था. सो अब जब ये जगता है मिस्टर लॉसल, उसका हस्बैंड जब जगता है तो क्या करता है? कुछ ऐसा करता है कि बहुत अजीब लगता है. किसे? माटिल्डा को. क्या करता है? So he threw around her shoulders the modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. देखो, this is the beauty of the literature. इतना बढ़िया सेंटेंस लिखा हुआ है, गौर से फिर से पढ़ो. They threw around her shoulder. हस्बैंड ने बस अपने वाइफ के शोल्डर के चारों तरफ कुछ रख दिया. क्या रख दिया? The modest wraps they had carried. एक रैप क्या होता है? जिसे हमारे गमछा वगैरह कहते हैं ना, जिसे गर्दन को ढका जाता है, शॉल वगैरह. एक पुराना सा शॉल ले गया था, रैप ले गया था कवर करने के लिए गर्दन को. ठीक है, वो पुराना सा कवर रैप उसने माटिल्डा के इस पे गर्दन के चारों तरफ डाल दिया था. ऊपर से नीचे तक पूरे नए क्लोथ्स और महंगे महंगे कपड़े और जूल्स पहने हुए थे. उसमें एक फटा पुराना
पुराना सा, फटा नहीं, पुराना सा एक रैप, एक गमछा टाइप का उसने उड़ा दिया था किसे, मटिल्डा को। और ये चीज़ क्लैश कर रही थी। क्लैश मीन्स अगेंस्ट, किस चीज़ के अगेंस्ट थी, उसके इंटायर लुक के अगेंस्ट थी। वो जो उसने छोटे एक रैप पहना दिया था उसके हस्बैंड ने, वो रैप सूट नहीं कर रही थी उसे। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे तक उसने वेल्दी क्लोथ्स, अब डियरली क्लोथ, महंगे क्लोथ पहने हुए था, उस पर से पुराना सा एक गमछा टाइप का उठा दिया था। ये पहनावा बाद बाकी पहनावा के साथ क्लैश कर रही थी, मैच नहीं कर रही। So she wished to hurry away in order not to be noticed by the other women who were wrapping themselves in rich furs. और जो वहाँ दूसरी औरतें थी ना, उन्होंने महंगे महंगे फर के गमछे पहने हुए और इसके हस्बैंड ने इसे पुराने रैप्स पहना दिए थे। वो चाहती थी कि जल्दी से उस पार्टी से निकले, so that the others might not notice her wear the wraps. वो नहीं चाहती थी कि और दूसरी औरतें इसे पुराने फटे से रैप में देख ले। वहाँ से जल्दी से भागने के चक्कर में थी कि जल्दी से इस पार्टी से निकले। अब निकल जाती है वो पार्टी से। Now Loisel detained her. Detain means stop. पुलिस डिटेन करती है आपको, आजकल पुलिस डिटेन कर रही है, रोक रही है। तो पुलिस लॉयसेल डिटेन करता है, अपनी वाइफ को रोकता है, कहता है कि तेज मत दौड़ो, मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। वेट, सेड ही, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब। पैदल चलने की जरूरत नहीं है, मैं गाड़ी बुलाता हूँ, कैब बुलाता हूँ, लोग कैब में घर जाएंगे। बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली। लेकिन मटिल्डा अपने हस्बैंड की बात नहीं सुनती और तेजी से वो रोड की तरफ बढ़ने लगती है ताकि दूसरी औरतें उसे फटे पुराने गमछे में देख न दें। When they were in the street, they found no carriage and they began to seek for one, hailing the coachman whom they saw at a distance. जब स्ट्रीट पे आगे बढ़ते हैं तो काफ़ी रात तो पूरी गुजर ही चुकी होती है, सुबह 4 साढ़े 4 का वक्त होता है, तो कोई कैब ड्राइवर दिखाई नहीं देता है। एक कोचमैन मतलब एक घोड़ा गाड़ी खींचने वाला है, जो कैरेज पुलर होता है, वो दिखाई देता है काफ़ी दूरी पे। They walked along toward the river, hopeless and shivering. Finally, they found one of those old carriages that one sees in Paris after nightfall. तो जब इन्हें कोई गाड़ी नहीं मिलती तो ये लोग पैदल निकलना स्टार्ट करते हैं और थोड़ी दूरी पर जाने के बाद इन्हें एक कोचमैन दिखाई देता है, घोड़ा गाड़ी दिखाई देता है, जो कि अक्सर आपको पेरिस के स्ट्रीट में रात होने के बाद ही आपको दिखाई देता है। So it took them as far as the door and they went wearily up to their apartment. Wearily means tired. काफ़ी थक के ये लोग बहुत ही टायर्ड हो गए थे, काफ़ी थके हुए थे और ये लोग अपने अपार्टमेंट में जाते घर पहुंच चुके होते हैं। अभी इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर। मटिल्डा के लिए जो एंजॉयमेंट का मोमेंट था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। मटिल्डा को अब जाकर के स्लीप करना है, लेकिन हस्बैंड को क्या करना है? बट ऑन हिज पार्ट ही रिमेंबर दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाय 10 o'clock। लेकिन मटिल्डा के हस्बैंड को पता है कि उसे सुबह 10 बजे ऑफिस भी पहुंचना है। She removed her wraps. She removed the wraps from her shoulders before the glass for a final view of herself in the glory. Suddenly, she uttered a cry, and her necklace was not around her neck. Finally, जब घर में अपने कमरे में एंटर करती है मटिल्डा, तो एक बार आखिरी बार वो आईने के सामने में अपने आप को देखना चाहती है, ग्लोरीफाइड फील करने के लिए, प्राउड फील करने के लिए आखिरी बार, क्योंकि अब तो वो ड्रेस को अब चेंज करेगी, नेकलेस उसे वापस करना है, तो वो सोचती है कि अब ये नेकलेस मुझे वापस करना है, अब पता नहीं मैं ये ड्रेस कब पहन पाऊँगी, नहीं पहन पाऊँगी। सो फॉर द फाइनल टाइम, आखिरी बार वो आईने में अपने आप को देखती है और प्राउड फील करती है। जैसे ही वो दुपट्टा, वो गमछा जो उसके हस्बैंड ने पहना हुआ था वो हटाती है अपने गले से, वो नोटिस करती है कि उसके गले में नेकलेस नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लॉयसेल ऑलरेडी हाफ undressed asked what is the matter। लॉयसेल पहुंचता है किसके पास? मटिल्डा के पास, और पूछता है, उसने अभी पूरे कपड़े भी उतारे भी नहीं थे, अभी हाफ ड्रेस ही था, हाफ अनड्रेस्ड ही था। पूछता है क्या बात है? She turned towards him excitedly. I no longer have मैम फॉरेस्टियर्स नेकलेस। और कहती है कि मेरे गले में वो नेकलेस नहीं है मैम फॉरेस्टियर में। He rose in dismay. Dismay means परेशानी, घबराहट, एग्जैक्टली बेचैनी में वो बेचारा खड़े होकर के कहता है, What? How is that? It's not possible। ये कैसे? ये संभव नहीं हो सकता है।
and they looked in the folds of the dress, in the folds of the cloak, in the pockets, everywhere. और दोनों हस्बैंड वाइफ ने उस नेकलेस को कहाँ कहाँ ढूंढा? कमरे में जो ड्रेस परे हुए थे उसमें ढूंढा, जो कमरे में जो क्लोक लगे हुए थे यानी कि कर्टन्स वगैरह लगे हुए थे या फिर और भी जो कपड़े रखे हुए थे उसमें ढूंढा उन्होंने, पॉकेट्स में ढूंढा, लेकिन कहीं भी नेकलेस नहीं मिला. They could not find it. He asked, "You are sure you still had it when we left the minister's house?" On this, the husband asked Matilda if she remembered she had the necklace around her neck the time when both left the minister's residence. पूछता है कि क्या जब हम लोग मिनिस्टर के रेजिडेंस से निकले थे तुम्हें याद है कि तुम्हारे गले में था नेकलेस? Yes, I felt it as we came out. मटिल्डा कहती कि हाँ मुझे बिल्कुल याद है, मुझे महसूस हुआ कि मेरे गले में नेकलेस है जब हम बाहर निकल रहे थे. But if you had lost it in the street, we would have heard it fall. It must be in the cab. कहती है, हस्बैंड कहता है कि अगर तुम्हारा नेकलेस स्ट्रीट में चलने के दौरान अगर गिरा होता तो उसकी गिरने की आवाज़ कोई होती, वो आवाज़ हम सुन सकते थे. तो कोई आवाज़ तो क्रिएट हुई नहीं थी स्ट्रीट में, तो ये पक्का कहाँ गिरा होगा? कैब में गिरा होगा, उस गाड़ी में गिरा होगा जिस गाड़ी में हम लोग बैठ करके आए. Yes, it is possible. Did you take the number? No. And you? Did you notice what it was? No. दोनों पूछते हैं एक दूसरे से कि क्या तुमने कैब वाले का नंबर नोट किया, गाड़ी वाले का नंबर नोट किया? दोनों कहते हैं कि नहीं, मैंने कैब वाले का नंबर नोट नहीं किया. They looked at each other utterly cast down. Utterly cast down मतलब extremely disappointed. मुरझाए हुए चेहरे से. Utterly means होता है completely. cast down मतलब होता है मुरझाए हुए चेहरे से, disappointedly. काफ़ी निराशा की नज़रों से, पूरी तरीके से निराशा की नज़रों से दोनों हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे को देख रहे थे. फाइनली लोसेल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन. फिर लोसेल ने कपड़ा पहन लिया. क्या करने जा रहा है? आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ. he said, over the track where we went on foot to see if I can find it. हस्बैंड निकल जाता है घर छोड़ के. और कहाँ जाता है? उसी स्ट्रीट पे, उसी रास्ते पे जिस रास्ते पे ये लोग पैदल चले थे पूरी देर के लिए, ताकि वहाँ पे अगर नेकलेस गिरी हो तो वो वापस लेके आ सके. And he went. She remained in her room. She remained in her evening gown, not having the force to go to bed. Not having the force to go to bed मतलब इतनी उसके अंदर शक्ति नहीं थी, ताकत नहीं थी कि वो जा कर के सो सके. इतनी मेंटल एग्जाइटी थी, इतनी परेशानी थी, इतनी बेचैनी थी, घबराहट. क्यों? महंगा ज्वेल है, एक ऑलमोस्ट पुअर मिडिल क्लास वुमन है, इतने पैसे कहाँ से आएगा कि उसे दिया जा सके. तो वो काफ़ी एंक्शस थी, बहुत चिंतित थी, वो सो भी नहीं सकी थी. टुवर्ड्स 7 o'clock, 7 बजे सुबह में, हर हस्बैंड रिटर्न, ही हैड फाउंड. 7 बजे सुबह में मिस्टर लोसेल फिर वापस आते हैं with nothing in his hand. That means he could not find the necklace on the street or anywhere. Now what does he do? He went to the police and to the cab officers and put an advertisement in the newspaper offering a reward. अब इस नेकलेस की चोरी की कंप्लेन लिखाने के लिए वो कहाँ जाते हैं? पुलिस स्टेशन जाते हैं, फिर कैब ऑफिस जाते हैं वो, और उन्होंने न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट भी दी थी कि अगर किसी को ये नेकलेस मिलता है तो वो ला के वापस करे और उसे रिवॉर्ड दिया जाएगा, उसे पुरस्कार दिया जाएगा. She waited all day in a state of bewilderment before this frightful disaster. She waited all day in a state of bewilderment. Bewilderment means वही anxiety, घबराहट, anxiety. So माटिल्डा पूरे दिन घबराहट में गुजारती. Before the frightful disaster. अंडरलाइन करो, क्वेश्चन बनता है, what was that frightful disaster? The loss of the necklace was the frightful disaster. Frightful means डरा देने वाला. Disaster means एक दुखद घटना. ये एक दुखद घटना थी. हाँ, bewilderment means घबराहट, anxiety. तो perplexity है. So Miss Matilda spent the entire day in a state of bewilderment
Loisel returned in the evening. His face pale. He had discovered nothing. अब शाम को Loisel हस्बैंड वापस आता है और शाम तक भी नेकलेस का कोई पता नहीं चला और वो काफ़ी पेल था. I mean, when you are downcast, when you are dejected, when you are oppressed, suppressed, चेहरे मुरझाया हुआ तो आपका फेस पेल हो जाता है. तो काफ़ी मुरझाए हुए चेहरे के साथ शाम में वापस लोसल घर आता है और उसे अभी तक कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है. He said, write to your friend that you have broken the clasp of the necklace and that you will have it repaired. That will give us time. तो सोचता है कि अब मैम फॉरेस्टियर को कैसे नेकलेस वापस किया जाए. इतने पैसे तो हैं नहीं, उन्हें नया नेकलेस खरीद के दिया जा सके. तो वो प्लान करता है और अपने वाइफ को कहता है कि चिट्ठी लिखो मैम फॉरेस्टियर, उसे कहो कि नेकलेस का क्लैस्प यानी कि एक पार्ट ज्वाइनिंग पार्ट होता है, एक पार्ट उसका टूट गया. उस पार्ट को बनवाने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होगा. जैसे ही ये पार्ट बन जाता है नेकलेस से रेडी हो जाएगा तो वापस कर दिया जाएगा और इसे थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा ताकि हम सोच सकें कि नेकलेस कैसे वापस करना है. She wrote as he dictated. जैसे जैसे हस्बैंड ने डिक्टेट किया बताया वैसे वैसे वाइफ ने लिख दिया. At the end of a week they had lost all hope. एक हफ्ता हो गया and still there is no trace of the necklace. अभी तक नेकलेस का कोई ट्रेस नहीं निकला और उन्होंने अब आशा ही छोड़ दी थी कभी नेकलेस मिलने वाला. Now they are planning to arrange for a new necklace. How? सभी लोग प्लान कर रहे हैं कि अब पुराना नेकलेस हो गया, नया नेकलेस कैसे देना है ये प्लान करें. So, and Loisel ordered by 5 years declared we must replace this jewel. हस्बैंड कहता है कि अब हमें इस ज्वेल के बदले नया रिप्लेसमेंट देना पड़ेगा, नया ज्वेल देना पड़ेगा. In a shop of the Palace Royal, they found a chaplet of diamonds which seemed to them exactly like the one they had lost. अभी लोग मार्केट जाते हैं और मार्केट में एक बहुत बड़ा ऑर्नामेंट का शॉप होता है, डायमंड नेकलेस का शॉप होता है जिसे पैलेस रॉयल का अंडरलाइन कर लेना, 1 नंबर का बन जाएगा क्वेश्चन. पैलेस रॉयल में ये लोग जाते हैं और वहाँ पे उन्हें एक ऐसा ही बिल्कुल डिज़ाइन चैपलेट में डिज़ाइन एक इसी तरह का नेकलेस मिलता है और वो नेकलेस बिल्कुल हूबहू वैसा ही होता है जैसा मैडम फॉरेस्टियर का था. इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रैंक्स. इस नेकलेस की कीमत थी 40,000 फ्रैंक्स, 40,000 फ्रैंक्स. ठीक है. They could get it for 36,000. मैनिपुलेशन होता है, बार्गेनिंग होती है शॉपकीपर के साथ और फिर इस 40,000 के नेकलेस की प्राइस लगाई जाती है कि ठीक है 36,000 पे ये लोग परचेज कर लेंगे. Loisel possessed 18,000 francs which his father had left him. Loisel के पास, हस्बैंड के पास उस वक्त 18,000 फ्रैंक्स थे जो उसके फादर ने उसके लिए छोड़ रखा था. He borrowed the rest. बाद बाकी जो 18,000 फ्रैंक्स बचे वो उधार लेता है. He made ruinous promises. Ruin मीन्स होता है बर्बाद कर देना. Ruinous मीन्स something that will destroy you. वो प्रॉमिस जिसे करके जिस प्रॉमिस को आप फुलफिल करते करते आप बर्बाद हो जाएंगे. इस तरह की इसने प्रॉमिस की थी. किसके साथ? उनके साथ जिन्होंने इसे 18,000 फ्रैंक्स दिए थे. Took money from the usurers. Usurer means सूदखोर, one who lends money, वो जो पैसा देता है on interest. So उसने यूजर से सूदखोरों से पैसे लिए एंड द होल रेस ऑफ लेंडर्स. तो जितने भी जान पहचान के पैसे देने वाले थे ना सबसे इसने कुछ पैसे लिए और फाइनली 18,000 फ्रैंक्स का इसने अरेंज कर लिया. 18,000 फ्रैंक्स इसके पास ऑलरेडी था. 36,000 फ्रैंक्स अरेंज हो गए. अब ये नेकलेस परचेज होना. Then he went to get the new necklace, depositing on the merchant's counter 36,000 francs. और फाइनली इन्होंने नया नेकलेस खरीद लिया 36,000 फ्रैंक्स में. 18,000 ऑलरेडी था. 18,000 इसने इंटरेस्ट पे जितने भी मनी लेंडर्स थे, यूजर्स से, सूदखोर थे, सबसे इसने ले लिया. मैम फॉरेस्टियर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मैम लोइसेल फियर्ड शी वुड. अब जैसे ही मैम फॉरेस्टियर के पास पहुंचती है ये नया नेकलेस लेके मटिल्डा, मैम लोइसेल, तो उसे डर लगता है कि ये नेकलेस खोल के चेक ना कर ले कि वही नेकलेस है
कि मैंने तो कहा था कि नेकलेस का ग्लैंड टूट गया है, एक्चुअली हो गई है चोरी। तो जिसका जो सामान है एग्जैक्टली वही सामान उसे नहीं मिलता है तो उसे शक हो जाता है कि ये मुझे मेरा सामान वापस नहीं कर रही, कोई डुप्लीकेट या फिर कोई इसका रिप्लेसमेंट मुझे दे रही है, तो कहीं मेरी झूठ पकड़ी ना जाए। समझ में आ रहा है? तो इसकी झूठ पकड़ी ना जाए। What would she think if she should perceive the substitution? Substitution means replacement. What is the substitution here? This new necklace is the substitution to the lost necklace. This new necklace is the substitution to the lost necklace. गायब हुए नेकलेस का ये नया नेकलेस सब्सटीट्यूशन है। और परसीव मतलब समझ लेना, पहचान लेना, पकड़ लेना। कहीं ऐसा ना हो कि ये पकड़ ले कि ये एक नया नेकलेस है, इसका पुराना नेकलेस नहीं है। What would she say? क्या वो कहेगी? Would she take her a robber? क्या वो उसे कहीं चोर तो ना समझने लगेगी, चोरी कर लिया इसने मेरे घर से। तो इस तरह के ख्यालात उसको एंक्शस एंग्जाइटी वाले ख्यालात आ रहे थे, इसे फियर भी फील हो रहा था, डर भी फील हो रहा था। क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन बनता है Why was Russell fearful or anxious when she went to Ma'am Forrester's house with a new necklace? तो न्यू नेकलेस के साथ मैम फॉरेस्टर के घर पे जाती है तो ये क्यों फियरफुल होती है, डरी क्यों रहती है, एंग्शियस क्यों रहती है, घबराई भी क्यों रहती है? इसका इसमें आंसर होगा। So Ma'am Russell now knew the horrible life of necessity. Underline code this one. Ma'am Russell now knew the horrible life of necessity. ज़रूरत की जो भयंकर ज़िंदगी होती है, अब इसे समझ में आता है कि ज़रूरत क्या होती है, ज़रूरत क्या होती है, नेसेसिटी क्या होती है लाइफ में, अब इसे एहसास होता है। देखो इसका लाइफ कैसे चेंज हो रहा है। She did her part, however, completely heroically. Heroically means bravely. काफ़ी वीरता के साथ, काफ़ी हौसले के साथ, काफ़ी साहस के साथ। मैम रसेल की अब लाइफ यहाँ से चेंज होने वाली है। और इनकी लाइफ, अब तक इन्हें लग रहा था कि इनकी लाइफ बहुत ही मिडिल क्लास लाइफ जी रही है, अनएक्सपेक्टेड लाइफ भी जी रही थी। अब इनकी लाइफ और अग्रवेट होने वाली है, यानी कि स्थिति और इनकी खराब होने वाली है। और जो भी इनके लाइफ में चेंजेस होते हैं, नेगेटिव चेंजेस होते हैं, सारे चेंजेस को ये एक्सेप्ट करती है हीरोइकली। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेप्ट। ये जो 18,000 फ्रेंक्स का जो डराने वाला डेप्ट लिया हुआ था, कर्ज लिया हुआ था इसने, इसे चुकाना भी ज़रूरी था। शी वुड पे इट, इसे चुकाना था। द सेंट अवे द मेड। मैम रसेल के घर में एक मेड हुआ करती थी, उसको उन्होंने अपने घर से निकाल दिया। पहली चीज़, पहली बदलाव। दूसरी बदलाव, द चेंज द लॉजिंग्स। वो जहाँ रहती थी जिस अपार्टमेंट में, उस अपार्टमेंट का किराया बहुत महंगा था, उस अपार्टमेंट को उसने छोड़ दिया और कहाँ चली गई? द रेंटेड सम रूम्स इन द एटिक। एटिक क्या होता है? छत पे एक स्टोर रूम होता है जिसमें अननेसेसरी चीज़ें हम जो अननेसेसरी चीज़ें होती है हम नहीं रखते हैं, जो यूज़ नहीं करते हैं उसे एटिक में रखते हैं, स्टोर। तो छत पे जो ये टॉप फ्लोर पे होता है, नीचे भी नहीं होता, एटिक हमेशा टॉप फ्लोर पे होता है। ठीक ठाक से जो इनका मिडिल क्लास टाइप ऑफ जो अपार्टमेंट था, उसका भी ये पुअर एटिक में जा करके रहने लगे, स्टोर रूम में अब ये रहना स्टार्ट कर देती है। 3 बदलाव इनके लाइफ में होते हैं। पहला, इन्होंने अपने घर से मेड निकाल दिया एक्सपेंस बचाने के लिए। इन्होंने अपने लॉजिंग्स बदल दिया, लॉजिंग मीन्स अपार्टमेंट जहाँ रहती है, इसने अपार्टमेंट बदल दिया। और तीसरा, एक रेंट ले लेती है छोटे से कमरे। ठीक है, चलिए आज आप यहीं रहने दीजिए, अब रेस्ट ऑफ द पार्ट हम कल इसको फिनिश ही कर